सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने पार्टी ऑफिस में डॉक्टर अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़दा तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव एक तरफ बाबा साहेब के लिखे हुए दस्तूर और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और जमहूरी उसूलों को पामाल करते हैं, तो दूसरी तरफ नेकलेस रोड और टैंक बंड पर बाबा साहेब का मुजस्समा नस्ब कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया कि वो रियासत में आए दिन दलितों पर जो जुल्म हो रहा है उसे रोके और दलितों गिरिजनों को 3 एकड़ अराजी देने का जो वादा किया गया था उसे पूरा करें। ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంబేద్కర్ ప్రపంచంలో 3 రకాల అధికారాలు ఉంటాయని మాట్లాడారు. మొదటిది సంప్రదాయాల ప్రకారం వచ్చిన అధికారం, అంటే మతము సమాజంలో ఉన్న కట్టుబాట్ల వల్ల ఒక మనిషికి వేరొక మనిషి మీద వచ్చే అధికారాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా వచ్చిన అధికారం. రెండవ అధికారం బలవంతంగా ఇతరులపైన దౌర్జన్యంతో చెలాయించే అధికారం. ఇది పూర్తిగా ఒక నిరంకుశమైన దౌర్జన్యపూరితమైనటువంటి ఒక అధికారం. కేవలం స్వార్థం కోసమే పనిచేస్తుంది. సంప్రదాయ అధికారం కూడా స్వార్థం కోసమే ఒక మనిషి ఇంకొకరి మీద పెట్టాలని చెలాయిస్తుంది. ఈ అధికారంలో కూడా బలవంతంగా దౌర్జన్యంతో చెలాయించే పెత్తనం కూడా అది కేవలం స్వార్థం కోసమే చెలాయిస్తుంది. మూడవది ప్రభుత్వం, అది ప్రజల आज कांग्रेस पार्टी ने मंचिरियाल में सत्याग्रह सभा का इनेकाद अमल में लाया। इस जलसे आम से कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, अराकीन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी व कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर, एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, अराकीन असेंबली और दीगर सीनियर कायदीन ने खिताब किया। అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం అవుతుందని చెప్పి ఈ రోజు మనం మంచిర్యాలకు వచ్చి ఈ దేశానికి దశ దిశ నిర్దేశం చేస్తున్నటువంటి అధ్యక్షులు మన ముందు ఉన్నారు. ఈరోజు మంచిర్యాల పట్టణంలో మిత్రులు ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు ఆనాడు నేను మొదలు పెట్టినటువంటి మార్చి నెల పాదయాత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్దల మాణిక్రావు ఠాక్రే గారు, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ నాయకత్వం మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పాదయాత్ర చేయాలి, రాహుల్ గాంధీ గారు చేపట్టినటువంటి భారత్ జోడో యాత్ర సందేశాన్ని ఊరూరు తీసుకొని వెళ్ళాలి. 3 నిమిషాలు కేటాయించారు. ముందుగా భట్టి విక్రమార్క గారు, ప్రియ మిత్రులు సిఎల్పి నాయకులు, మండు టెండలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయడానికి 1500 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర మొదలు పెట్టుకొని 300 కిలోమీటర్లు పూర్తి సందర్భంగా ఈ అద్భుతమైన సభ నిర్వహిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ నా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడున్న అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు గమనించాలి. స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఒక రాజకీయ నాయకుడు, ఒక బ్లాక్ అధ్యక్షుడి నుంచి జాతీయ అధ్యక్షుడి వరకు ఒక నాయకుడు 30 రోజుల నుంచి ఎర్ర టెండలో నడుస్తూ మంచిర్యాల పట్టణానికి చేరుకున్న సందర్భంగా జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, మీ అభిమాన నాయకురాలు శ్రీమతి సురేఖమ్మ, మిత్రుడు మాజీ శాసన మండలి సభ్యులు ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు అఖండమైన స్వాగతం పలికి ఈ మంచిర్యాల గడ్డ కాంగ్రెస్ అడ్డా నిరూపించినందుకు నిర్వాహకులకు మనస్ఫూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమానికి कर्नाटक धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे रैली का आयोजन आपने किया है। आप जानते हैं कि आज
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती है, महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे दैवत है। उसी के लिए इस तरीके से जो सोच हमारी है कांग्रेस पार्टी की, बाबा साहब के विचारों के आधारित है। हमारा नेतृत्व राहुल जी गांधी, सोनिया जी गांधी, जिन्होंने हमें जो कार्यक्रम दिया है, हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम, इस देश के सभी जनता ने साथ रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, ये संदेश हमारे नेतृत्व ने दिया है। और सम्मानीय खारगे जी ने हमें कहा है कि जय जय हिंद, जय भारत सत्याग्रह यात्रा सब तरफ निकालनी चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। इसका मकसद आप जानिए, जो गरीब जनता है, एससी एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, ये इससे मतलब होता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने लगातार, हमारे रेवंत रेड्डी जी ने पूरे राज्य में यात्रा निकाली, भट्टी जी ने पूरे राज्य में यात्रा निकाली, हमारे सब नेतागण यात्रा निकाल रहे हैं उनके क्षेत्र में, और एक साथ होकर हम लड़ रहे हैं। उसके हमारे जिस तरीके से इस राज्य में झूठे वायदे किए थे, केंद्र ने झूठे संविधान समिति में नहीं होते तो आज दलितों को वोटिंग का राइट मिलता नहीं था, और जो महिलाएं हैं उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर रहने की वजह से उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज यानी महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, अमीरों को, सबको बराबर का हक दिया। सबको एक ही वोट का अधिकार है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये जो कोशिश करके नया संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को सौंप दिए थे, उन्होंने ये काम किया है। लेकिन दोस्तों, आज सब लोग अंबेडकर को भूल रहे हैं, दलितों का नाम लेते हैं। कोई बाबा साहब अंबेडकर का 15 फुट का स्टैचू लगाता है, कोई 20 फीट का लगाता है, कोई 125 फीट का लगाता है। लेकिन गरीबों की हालत क्या है, उनके लिए क्या काम करना चाहिए, वो काम कोई नहीं करता। मैं बताना चाहता हूं, इस अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान दलितों को लाया था, और जितनी जन शहर हैदराबाद में 2 खानगी डॉक्टरों की लापरवाही का संगीन वाकया सामने आया। इस वाकये के सामने आने के बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल ने दोनों डॉक्टरों पर 3 या 6 माह की पाबंदी लगा दी है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के ECIL इलाके में काम करने वाले करण एम पाटिल नामी आर्थोपेडिक डॉक्टर ने एक मरीज के पैर का गलत ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर ने सीधे पैर का ऑपरेशन करने के बजाय दाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया और अपनी इस गलती के 2 दिन बाद निशानदही करते हुए दोबारा उस मरीज के सीधे पैर का ऑपरेशन किया, जिस पर मुतासरा मरीज के रिश्तेदारों ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर से रुजू होते हुए मज़कूरा डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। DMNHO की जानिब से इस मामले की तहकीकात करने के बाद डॉक्टर की लापरवाही का इल्म हुआ, जिस पर करण एम पाटिल को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। साथ ही उन्हें अपील की भी इजाज़त दी गई। इसी तरह एक और वाक़े में स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मंचिरियाल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले डेंगू के मरीज को वक्त पर इलाज न करने के इल्ज़ाम में
CH श्रीकांत नामी डॉक्टर को 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। बताया गया कि डॉक्टर श्रीकांत ने डेंगू के मरीज का उनके हॉस्पिटल से रुजू होने के फौरी बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें बड़े हॉस्पिटल से रुजू होने का मशवरा नहीं दिया, जिसके नतीजे में मरीज की मौत हो गई। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने डॉक्टर के खिलाफ जिला कलेक्टर मंचिरियाल को शिकायत की। जिला कलेक्टर से रिपोर्ट तलब करते हुए मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर श्रीकांत को 3 माह के लिए प्रैक्टिस से मुअत्तल कर दिया। जिले पेद्दापल्ली के रामागुंडम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में एक टैंक में 3 बच्चे गर्क हो गए। ये वाकया जुमे को न्यूपोर्ट टिपली NTPC के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक 4 बच्चे साई चरण, यू महेश, विक्रम और एक दूसरा लड़का इंद्रमा कॉलोनी के करीब वाक़ एक टैंक को तैरने के लिए गए थे। सबसे पहले साई चरण, यू महेश और विक्रम टैंक में उतरे। चूंकि वह तैराकी से नावाकिफ थे, इस वजह से पानी में डूबने लगे। सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए इस मकाम पर मौजूद एक दूसरा लड़का फौरी आबादी में पहुंचा और देहातियों से इस वाक़े के बारे में बताया। देहाती भी फौरी पहुंच गए और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। तकरीबन 12 साल की उम्र वाले ये बच्चे मकामी जिला परिषद स्कूल में 8वीं जमात में ज़ेरे तालीम थे। मकामी पुलिस ने पहुंचकर नाशों को बगैर पोस्टमार्टम गोदावरी खनी के एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया। महकमे मौसमियात ने जुमे को पेशकयासी की है कि तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं हफ्ता यानी 15 अप्रैल और इतवार 16 अप्रैल तक गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है और इस मुद्दत के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में कहीं कहीं 14 से 18 अप्रैल हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुमेरात को कई मकामात पर आज़म तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री या उससे ज़ायद दर्ज किया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने साबिक वज़ीर आंध्र प्रदेश वाइस विवेकानंद रेड्डी के 2019 के कत्ल केस की तहकीकात में तेजी पैदा करते हुए जुमे को मजीद एक गिरफ्तारी की है। CBI की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने G उदय कुमार रेड्डी को जिले कड़पा के पुलिवेंदुला में गिरफ्तार कर लिया। समझा जाता है कि वो कड़पा के रुकने पार्लियामेंट YS अविनाश रेड्डी के करीबी हामी हैं। हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में नाथुराम गॉडसे की तस्वीर के साथ डांस करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद की शाह इनायतगंज पुलिस ने रामनवमी जुलूस के दौरान नाथुराम गॉडसे की तस्वीर को दिखाकर डांस करने वाले नौजवान को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ सेक्शन 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम की शिनाख्त आंध्र प्रदेश के अमलापुर के मुतवतिन 21 साल ITI टेक्नीशियन चिता हिमा कुमार के तौर पर की गई है, जो फिलहाल गच्चीबौली के सिद्दीक नगर में मुकीम है। वो गच्चीबौली इलाके में BJP का सरगर्म कारकुन है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।